I'm not able to confirm if my screen is visible to you guys. So if admin, you can confirm from your Yes, end. it's visible. Okay, thank you. All right. So हम देखते हैं या समझते हैं क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें काम आते हैं। These are generic. These applies to all the cloud services which we have, and mainly we can use these terminologies with the Azure. But these are useful with the AWS and GCP and other, cloud platform as well. There is a certification called AZ 900 where these terminologies are being checked. तो ये बहुत ही यूजफुल होता है even for interview, even you go for senior position or intermediate position, you are supposed to ask these questions by interviewers sometimes. तो ये बहुत ही important terminology, however these are basics. So this week we will dedicate on this, and hopefully we will finish in 3 to 4 days these all conceptual things, and then we will start hands on and practical with the along with the theories. So technical part हम उसके बाद start करेंगे. All right, so let's continue with this, and I'll just choose a pen here. Okay. So I think we discussed about in previous engagement that what is the high availability, scalability, elasticity, agility, fault tolerance, and disaster recovery. तो ये जो वर्डिंग्स होती है ये प्रोफेशनल जो लाइफ होती है, या आप जब काम करते हैं आपके जॉब एनवायरनमेंट में, you may face or you may have this interaction with your management or the senior people, and they will be talking about this, so you need to understand what they are talking about and what does it mean. Okay, let's quickly go through. I'll just recap it. So let me just share my pen tool. Okay, so let's go to next slide. क्लाउड एजिलिटी के बारे में हमने देखा था, कितना एजाइल है, कितना रैपिडली हम चेंज कर सकते हैं, वो एजिलिटी कहा जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना जल्दी हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, तो कितना अवेलेबल है आपका एप्लीकेशन, even though there is any problem with the let's say if there is any issue with the hardware, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, एटीसी, बट स्टिल इट शुड बी अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है। इलास्टिसिटी, दैट हाउ क्विकली यू कैन एड एंड रिमूव रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड, कितना इलास्टिक है आपका सर्विस, वो भी देखा जाता है। तो these are like key points in the cloud when companies they look for the cloud solution for them. तो imagine करो, if you are a company and you are company owner, you will think all these things कि कितना अवेलेबिलिटी मिलेगा, कितना एजाइल है आपका सिस्टम, कितना इलास्टिक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एजिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाउ सिस्टम इज इजी टू इवॉल्व विद द बिजनेस चेंज। तो बिजनेस डिमांड में जैसे चेंज होगा वैसे आपका सिस्टम एजाइल है या नहीं है। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि इफ देर इज अ हार्डवेयर फेलियर, इफ देर इज एन एप्लीकेशन अपडेट, इफ देर इज any configuration change, or any OS start or heavy load restart, etc. If these things are happening, your application or your services should not be impacted. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बोलते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी कितना है। तो जनरली दीज आर इन परसेंटेज, सो 99.99 या कितने नाइन्स मिलते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो हर एक सर्विस का अलग अलग कमिटमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है। देन best practices to achieve high availability application running on the VM and web tier and DB tier. So these are like we will understand in detail when we do the practical कि कैसे उसको इंश्योर किया जाता है अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हम लोग डिटेल में एनीवेज वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट, सो डोंट वरी गाइस अबाउट दैट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्केलेबिलिटी हियर, कितना जल्दी आप स्केल कर सकते हैं। जैसे स्केलिंग जो बोलते हैं, जैसे बिजनेस में स्केलिंग होता है कि आपका जैसे 1 करोड़ का बिजनेस है, उसको 100 करोड़ पे ले जाने पे कितना स्केलिंग हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग। तो आपका अगर आप इसमें भी देखते हैं तो इसमें 2 तरीके की स्केलिंग होती है।
एक तो होती है आपकी वर्टिकल स्केलिंग, मीन्स द सेम रिसोर्स को आप एनहांस करें, और दूसरा होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मीन्स आप सेम रिसोर्स को ऐड करें। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था कि अगर आपके पास एक वर्चुअल मशीन है और वो अगर 2 जीबी रैम के साथ में है, 30 जीबी एचडीडी है उसका, जस्ट एज्यूमिंग समथिंग लाइक रफली, अगर उसको स्केल अप करेंगे या उसको वर्टिकल स्केलिंग करेंगे, जो कि सेम चीज़ है बेसिकली, दिस आर सिनोनिम्स हियर। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग बोलेगा या फिर अगर कोई स्केलिंग अप बोलेगा तो वो सेम चीज़ बोल रहा है। तो उसको बड़ा करना है, मीन्स उसको वर्टिकली एनलार्ज कर रहे हैं, एक तरीके से उसको बड़ा आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि आप उसको लेट से 4 जीबी कर लिया, उसको उसको 60 जीबी कर लिया, तो आपने उसको कैपेसिटी सेम वर्चुअल मशीन की एनहांस कर ली। या कोई भी, जैसे आपके कंप्यूटर में आपने रैम बढ़वा ली, तो वो स्केलिंग अप कर रहे हैं आप। अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना है, मतलब कि आपको और कंप्यूटर ऐड करना है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल वन। So you just keep in your mind that when they are talking about vertical, means they are making the same computer with the higher resources, या उसको बड़ा कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जब आप बात करते हैं, तो इट्स लाइक स्केलिंग हॉरिजॉन्टली, मीन्स you have one computer, you have same replica of another, so you are increasing the number of computers, or they call it instances, ठीक है? तो उसकी कॉपीज बनती जा रही है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और स्केलिंग आउट। कभी-कभी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में दे विल टॉक अबाउट स्केलिंग आउट, बिकॉज़ दिस वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिज़नेस एज़ वेल। तो वही वर्डिंग यहाँ पे भी यूज़ हुई है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या स्केलिंग आउट, ठीक है? ऑलराइट, सो दिस इज़ द सेम थिंग व्हिच वी डिस्कस। सो हॉरिजॉन्टल स्केल क्या होता है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। Now next thing is the fault tolerance. Sometime they ask about the system, या आपके जैसे मैनेजमेंट से आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप क्लाउड इंजीनियर हैं, तो उसको आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ फॉल्ट टॉलरेंट दिस सॉल्यूशन इज। जैसे आपने कोई सॉल्यूशन, या आपको कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला उन्होंने कि हमें एक वेबसाइट होस्ट करना है, उसको अवेलेबल रखना है, जैसे उसकी स्केलेबिलिटी, एजिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाए अगर, या आपको ये पूछा जाए कि कितना फॉल्ट टॉलरेंट है, अगर यहाँ पे कोई इश्यू होता है तो ये कितना टॉलरेंट है, हाउ वी विल रीस्टोर और इंश्योर द सर्विसेज रनिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो ये जब फॉल्ट टॉलरेंस की बात करता है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या होता है कि जैसे कोई 2 पैरेलल लाइन्स जा रही है, तो ये रिडंडेंट बोलते हैं उसको, कि दीज़ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लाइक रिडंडेंट है। एक दूसरे के पैरेलल है, उस तरीके से समझ लीजिए आप। तो रिडंडेंसी में क्या होता है कि आपका अगर सर्विस ए है और सर्विस बी है, ये दोनों सेम ऑफरिंग कर रहे हैं, और उस केस में अगर एक सर्विस फेल हो जाती है, तो स्टिल यू हैव वन रिडंडेंट सर्विस गोइंग ऑन। तो अगर एज़्योर के पर्सपेक्टिव में या क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो जैसे कि ये एक सर्विस किसी सिटी 1 में है, सिटी 1, एंड दिस इज़ होस्टेड फ्रॉम सिटी 2 फॉर एग्जांपल। इन दैट केस व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट अगर ये सर्विस या इसमें पावर आउटेज हो गया, या इसमें कोई नेटवर्क इश्यू आ गया, या उस सिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस केस में हमारी दूसरी सिटी से वो ऑफरिंग्स चलती रहेंगी, जो कि एंटायर रीजन इट इज़ अवेलेबल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फॉल्ट टॉलरेंस बोल सकते हैं, कि कितना वो फॉल्ट को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है? If so, in that case, if one component fails, the backup component should take its place. Okay, so it could be for the service, it could be for the same machine, it could be for storage as well. तो आपका डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस में क्या यूज करते हैं। अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि सिंपल कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर है, और उसमें फॉल्ट टॉलरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास में 2 सीपीयूज़ हो सकते हैं उसमें, ठीक है? उनकी वर्किंग हो सकती है। उसमें मल्टीपल रैम्स हो सकती हैं आपके पास, या रैम मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद में आपके पास क्या हो सकता है, मल्टीपल एचडीडीज़ या हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं, है ना? तो अगर एक हार्ड ड्राइव आपकी फेल हो जाती है, तो दूसरी हार्ड ड्राइव आपके पास होगी उस केस में। उसको रिडंडेंट बना सकते हैं आप। इसी तरीके से आप कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हो सकता है आपके पास में मल्टीपल कंप्यूटर्स हों, जो फेल ओवर का काम करें। एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, तो दूसरा आपको
वो सर्विस देता रहेगा। ठीक है, स्टोरेज में भी आपका वैसा ही होता है कि आपके पास में अगर आपने रेड कंट्रोलर का नाम सुना हो, जैसे रेड होती है, डिस्क रेड, ठीक है? तो उसमें भी यही होता है कि एक डिस्क अगर फेल हो जाती है, तो दूसरी डिस्क उसको इंश्योर करती है कि वो आपको सर्विस देती रहे, ठीक है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली इज़ द डिज़ास्टर रिकवरी। डिज़ास्टर रिकवरी वो होता है कि कोई अगर मेजर इंसिडेंट होता है, तो कुछ कंपनीज़ की अपनी डीआर साइट्स होती हैं या डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स होती हैं। कि अगर जैसे कि जैसे मुंबई में कोई इश्यू होता है, तो उस केस में लेट्स से दे मे हैव अनदर साइट इन द अहमदाबाद और समवेयर एल्स वेयर दे विल ऑपरेट देयर बिज़नेस फ्रॉम देयर। या ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में या ऐसे सेक्टर में जिसमें कि हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है, उस केस में ये होता ही होता है और दिस इज़ लाइक वन ऑफ द कंप्लायंस व्हिच हैज़ टू बी देयर। तो उस केस में डिज़ास्टर रिकवरी साइट या डिज़ास्टर रिकवरी ऑफ द सर्विसेज़ इंश्योर करनी होती है एंड दीज़ आर बीइंग यूज्ड व्हेन यू हैव एनी सर्विस डिस्ट्रप्शन। कोई भी इश्यू अगर आता है, कैलेमिटी आता है, ऐसा कुछ है, तो इन एंटायर रीजन अगर जैसे एक रीजन में आपका कोई इश्यू आता है, तो दूसरे रीजन में आपका डीआर साइट होता है और वहाँ से आपका वो सर्विसेज़ अप एंड रन हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे आपका डेटाबेस या डेटा की कॉपी होती है, ठीक है? योर ऑल योर business related services are placed there and immediately you can wake these up and start the serving as if you are working from the primary site, ठीक है? तो इसको डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो ये प्योरली फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव में है। अगर आप कोई लार्ज डेटा सेंटर चलाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, अमेज़न चला रहा है, व्हाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज़ दे आर लार्ज इन साइज़। सो दे कैन अफोर्ड लॉट ऑफ हार्डवेयर, दे कैन अफोर्ड लॉट ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, resources because they are in large in size. So they are like renting or providing the services to other businesses which are the small businesses which cannot or who cannot afford lot of costly hardwares. So हम लोग जैसे अगर कोई कंपनी है या हम लोग कोई इंडिविजुअल है, अगर हमें सर्वर चाहिए, so definitely we cannot set up a data center in at our home or small office. So we would prefer that हमें कहीं रेंट पे वो सर्विस मिल जाए. So the large cloud service provider, they ensure that they are in they have multiple data centers, they have a lot of hardware available, so they can give us a fraction of their resources on rental basis, and then we also, so it's like win-win situation for both. Cloud service provider को ये फायदा है कि वो ह्यूज स्केल पे काम कर रहा है, तो स्केल पे जब काम कर रहा है, तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, मेंटेन हो जाती है उनकी, क्योंकि वो रिसोर्सेज बल्क में लेते हैं, ठीक है? और हम लोग को ये फ़ायदा है एज़ अ स्मॉल बिज़नेस, अगर हम कंसिडर करते हैं, तो स्मॉल या मीडियम बिज़नेस को ये फ़ायदा होता है कि उनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका लगने वाला था या जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका होने वाला था, उसकी जगह उनको टेनेंट मॉडल मिल रहा है या उनको रेंटल मॉडल मिल रहा है। ठीक है? तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला गया है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इज़ द एबिलिटी टू डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली और लोअर कॉस्ट पर यूनिट व्हेन ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल। तो पर यूनिट बेसिस मीन्स आप वर्चुअल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो या स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू पर जीबी पे जो उनकी कॉस्टिंग आती है, वो उस पे मान लो, है ना? तो उनको काफ़ी उसमें बेनिफिट रहता है, ठीक है? नाउ विल टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से है या थोड़ा बहुत फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो दे अंडरस्टैंड अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज लाइक इनिशियल एक्सपेंडिचर व्हिच वी स्पेंड एंड दैट इज नॉट लाइक रीअकरिंग वन। तो अगर लेट्स से अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम एक डेटा सेंटर बना रहे हैं या हम कोई भी सर्विसेज हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो there will be a initial expenditure if we are setting it up from our own। तो उस केस में हमें कैपेक्स की ज़रूरत पड़ती है या कुछ कैपिटल या मनी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें स्पेंड करनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वन टाइम ह्यूज एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो अपफ्रंट एक्सपेंडिचर होता है एंड डिडक्टिंग दैट एक्सपेंस फ्रॉम योर टैक्स बिल ओवर द टाइम, ठीक है? कैपेक्स इज़ अ अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है? तो ये इनिशियल कॉस्ट इसको मान सकते हैं। एंड it has reduced value over the time। तो
ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि बाद में आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से अलग किया जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आपकी रीअकरिंग कॉस्ट है, जैसे कि रेंट हो गया, अगर आपने कोई सर्विस ले रखी है या वेयर हाउस ले रखा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसका ऑपरेशनल हो गया, स्टाफ मेंबर का सैलरी हो गया, ठीक है, दीज आर लाइक ऑपरेशनल कॉस्ट, सो विच आर लाइक रीअकरिंग इन नेचर, ठीक है, ठीक है, रीअकरिंग इन नेचर। तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक वन टाइम and which is going to like you can let's say buy the hardware procurement, ठीक है, तो इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है जो कि आपका इनिशियल होने वाला है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ cloud service providers like Azure or AWS or GCP, they came up with the idea is pay as you go, ठीक है, तो they want us to move from capex to opex, ठीक है, they don't want us to spend on the hardware because they have already done their expenditure from there, and we can use the service on pay as you go model, ठीक है, तो ज्यादातर सर्विसेज ऐसी होती है जिसकी बिलिंग होती है और दे आर डूइंग इट ऑन पर मिनट बेसिस, तो आपको हर मिनट का कॉस्टिंग आएगा उसमें। और इसका ये एडवांटेज है कि आपको अगर आप वो सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका कॉस्टिंग नहीं आएगा, ठीक है, आप एलोकेट करेंगे, आप जब रिसोर्सेज का आपको ज़रूरत है तब आप उसको एलोकेट करिए, उसका पर मिनट बेसिस पे वो चार्जेस आपको देंगे, ठीक है, और आपको जब वो सर्विस का यूज़ खत्म हो जाता है तो आपको उसका चार्जेस भी, आप उस जब सर्विस को डी एलोकेट करेंगे या उसको रिमूव कर लेंगे तो उसका कोई कॉस्टिंग नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट द मॉडल वी हैव फ्रॉम एज्योर और अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयर वी कैन बाय द सर्विस on per minute basis, so we don't have to spend anything, means we are not spending on the infrastructure, network, equipment, engineers, whatever, so we are just buying the service, we are maintaining it, we are using it, while we are using we are paying for that, and then we are destroying the service and we are safe. So this is what the capex to opex model, ठीक है, तो इसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, हमारी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हमें जब तक सर्विस यूज करना है तब तक ही हमें वो कॉस्टिंग करेगा, इट कुड बी फॉर मंथली और ईयरली बेसिस एज वेल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप then the fault tolerance already we have covered, so it is the ability to system continue operating full capacity and fully functional in the event of failure, ठीक है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन आप मान सकते हैं इसकी, कि किसी भी फ़ॉल्ट को वो टॉलरेट करेगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके शायद इन्होंने समझाया है कि वेब एप्लीकेशन हो सकता है व्हिच इज़ इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस एंड नॉट एक्सेसिबल और नॉट डाउन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी हैव डेटाबेस नॉट रनिंग और मे बी वेब एप्लीकेशन नॉट रनिंग, वी मे हैव इश्यूज़ विद दैट। सो वी हैव टू एंश्योर दैट दीज़ आर रिडंडेंट। तो अगर मैं 3 टियर एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो जैसे फर्स्ट टियर हम वेब मान लेते हैं, सेकंड टियर हम ऐप मान लेते हैं एंड थर्ड टियर हम डीबी मान लेते हैं, डेटाबेस, ठीक है। तो अगर ये एक एक मशीन पे रन करेगा या एक एक कॉपी ही उसकी होगी, और अगर कहीं पे भी फेलियर हो जाता है, जैसे अगर वेब सर्वर बंद हो गया आपका, तो पूरी सर्विस इंटरप्ट हो जाएगी, बिकॉज एंड यूजर इज गोइंग टू हैव इश्यू विद दैट। सो अगर ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और इंटरनेट पे यूजर आएगा तो उसको वेब सर्विस नहीं चलती हुई मिलेगी। अगर लेट्स से मान लो कि वेब सर्वर चल रहा है आपका और एप्लीकेशन सर्वर आपका क्रैश हो गया है, तो भी आपका डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है वो या वेब सर्वर से टॉक नहीं कर पाएगा और वो अल्टीमेटली यूजर को अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको हमें फॉल्ट टॉलरेंट बनाना होता है बाय एडिंग मोर रिसोर्सेज। तो अगर आपका वेब सर्वर है तो आपका दूसरा रिडंडेंट वेब सर्वर बना सकते हैं आप, एक एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हैं और डेटाबेस सर्विस बना सकते हैं। तो ये रिडंडेंट होगा, अगर कोई भी इनमें से एक फेल होगा तो दूसरा चलता रहेगा। So this is what we can call the fault tolerance. Okay, now the key concept here we have is इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी जाते हैं तो आपको, या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी यूजफुल रहता है, कि कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस
प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो कई बार अनुभव वाले या एक्सपीरियंस इंजीनियर्स भी होते हैं, या दे आर हैविंग एक्सपीरियंस बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन इट करेक्टली। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, जो कि ये वाला पार्ट है थ्योरेटिकली हम समझेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हम लोग को ये देखना होगा कि ये सर्विस अगर हमारी कंपनी यूज कर रही है तो विच टाइप ऑफ सर्विस इट इज एंड व्हाट ऑफरिंग्स और व्हाट आर डिफरेंस देयर इज, because maybe we are in future if you are dealing with the clients, then you have to talk in their language. They may also have some senior authority who know these terminologies. So infrastructure as a service model या share responsibility model क्या होता है वो देख लेते हैं. Infrastructure as a service is a most flexible category of cloud services. ठीक है, it aims to give you complete control over the hardware. ठीक है, तो इसमें हमें हार्डवेयर पे कंट्रोल मिल रहा है बेसिकली। यहाँ पे जब हार्डवेयर की बात करता है, इट्स टॉकिंग अबाउट वर्चुअल हार्डवेयर, सो डोंट कंफ्यूज विद द फिजिकल हार्डवेयर। हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो वर्चुअल होता है और एक फिजिकल होता है। फिजिकल हार्डवेयर जैसे कि हम जनरली हमारे घर पे देखते हैं कि अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है हमारे पास, तो दैट इज लाइक फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, और वर्चुअल हार्डवेयर जैसे हम वर्चुअल मशीन अगर बनाते हैं, अगर आपने विंडोज पे बनाया है या आपने लिनक्स पे बनाया है, तो वो वर्चुअल मशीन है, वो वर्चुअल हार्डवेयर है, वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से क्लाउड में भी आपकी वर्चुअल मशीन हो सकती है, तो उसको आपका वर्चुअल हार्डवेयर बोलते हैं। तो इट्स टॉकिंग अबाउट दैट हार्डवेयर बिकॉज फिजिकल इज टेकन केयर बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर always take care of it. We as a client never take care of the physical hardware. ठीक है, so that runs on your application. Basically it's talking about the virtual hardware that runs your application, IT infrastructure, servers, virtual machines, storage, network and operating system. तो कुछ एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस में किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है, स्टोरेज जो आपका वर्चुअल स्टोरेज है बेसिकली, या वर्चुअल नेटवर्क है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे जिस पे वर्चुअल मशीन्स पे रन कर रहा है, दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द हार्डवेयर और विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस यू रेंट इट। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है फ्रॉम एज्योर, so you can subscribe to this service, you can rent it, you can pay per minute basis, and you can use this computing resources, storage resources और database resources over the internet। ठीक है, तो आई होप वैसे आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी, विल जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन हियर। प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सो फर्स्ट वन था इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सेकंड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Platform as a service provide an environment for building, testing and deploying software applications। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट देगा, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमें सर्वर मिल रहा था या स्टोरेज या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड मिल रहा था, तो दीज आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हियर वी आर गेटिंग समथिंग which is not like infrastructure, which is like more like service. So goal of platform as service is to help you create an application quickly without managing underlying infrastructure। तो इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें कंट्रोल कम मिलेगा क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें कंट्रोल ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर रहे हैं, बट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ज्यादा हो जाती है बिकॉज वी आर मैनेजिंग मोर थिंग्स। So here infrastructure is being managed by cloud service provider means Microsoft। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन करने तक की ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन डिप्लॉइंग ऑन वेब एप्लीकेशन यूजिंग प्लेटफॉर्म एज सर्विस, you don't have to install operating system, web server or even a system update। तो ये सारा taken care by cloud service provider means the Microsoft, and we are just taking care of
और कोड और द एप्लीकेशन, दैट्स इट। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट इन द क्लाउड, ठीक है। तो मेनली द कंपनीज विच आर फोकसिंग टू रन देयर एप्लीकेशन विदाउट having lot of infrastructure management responsibilities, they always look for platform as service, और जिसको हम I think on common language we tell these like माइक्रो सर्विसेज जो आजकल जनरली बोला जाता है। तो माइक्रो सर्विसेज आर लाइक प्लेटफॉर्म एज सर्विस। तो उसमें वही है कि वो सर्विसेज इतनी टाइनी होती है कि दीज आर लाइक फ्रैक्शन कंपेयर टू एंटायर वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में आपको पूरा मशीन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करना है। यहाँ पे आपको ओनली आपकी सर्विस डिप्लॉय करनी है एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर और रिसोर्सेज आर बीइंग मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसका तो ओपनली बहुत सारे एग्जांपल है हमारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है हमारे पास, या डायनामिक सीआरएम है, या कोई भी ऑफिस एप्लीकेशंस हैं जो कि क्लाउड से रन करती है, जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इवन लाइक जीमेल अकाउंट या ऐसा कुछ भी लेते हैं आप, तो आप सर्विस यूज कर रहे हैं और आप उसका अंडरलाइन कुछ भी, आपके पास में अथॉरिटी नहीं है, आप उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। आप उसमें जो है वो आप सब्सक्राइब करो या साइन अप करो और यूज करो। तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। Software as a service is a software that is centrally hosted and managed for the end users या end customers, ठीक है। तो उस केस में आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, और आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या सॉफ्टवेयर जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका पूरा का पूरा उस एप्लीकेशन को मैनेज करता है, ठीक है। एंड यू आर जस्ट पेइंग फॉर द लाइसेंसेस इन दैट केस, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल। सो अगर आपको कुछ एग्जांपल पूछे जाते हैं या आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, तो इसका तो सिंपल सा आपका एग्जांपल होगा वर्चुअल मशीन, वीएम, ठीक है। हुँ, इसमें आपका हो सकता है ऐप सर्विस, ठीक है, ऐप सर्विस आप मान सकते हैं, ठीक है, या क्लाउड स्टोरेज या ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। और इसमें आपका हो गया एमएस 365 सबसे बढ़िया, या शेयर पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट इट। anyone is having any doubt, question related to this point right now? Okay, shall we continue? I think then all right, so I'll move forward. So जो हमने अभी डिस्कस किया उसी का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लाइक एज्योर वर्चुअल मशीन, वीनेट, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल हियर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ठीक है। सेकंड, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एज्योर क्लाउड सर्विसेज, वेब एप्स हो गई, स्टोरेज हो गई, एसक्यूएल एज्योर डेटाबेस। तो ये कुछ एक एग्जांपल होगा, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस में कुछ और एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, शेयरपॉइंट हो गया, कोई सीआरएम सिस्टम है, ऑफिस 365 जो अभी एमएस 365 बोलते हैं उसको, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज एंड देयर एग्जांपल। नाउ ये डायग्राम आपको काफी अच्छे से हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इसको बोलते हैं, बिकॉज हर एक सर्विस टाइप में, जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस में या सॉफ्टवेयर एज सर्विस में या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में, इवन इट इज कंपेयर्ड विद द when you have all the services running from your on premises, means your own data center, तो उससे भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड यू विल फाइंड दिस इमेजेस, लॉट ऑफ इमेजेस ओवर द इंटरनेट एज वेल टू अंडरस्टैंड। तो ऑन प्रीमाइस के केस में क्या होता है, जनरली हम टॉक करते हैं तो हमें एंड टू एंड सब कुछ हमें ही मैनेज करना है। तो उसमें क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, हमें फिजिकल नेटवर्क मैनेज करना है, हमें स्टोरेज अगर डिस्क हैं वो सारी मैनेज करनी है, सर्वर्स मैनेज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एडिशनली इसमें जैसे इसकी पावर सप्लाई भी आपको ही मैनेज करनी है, ठीक है। इसका जो नेटवर्क का थ्रूपुट है या जो आपका आईएसपी के साथ में जो कनेक्शन है वो भी आपको ही मैनेज करना है ना।
तो ये आपका अगर आप डेटा सेंटर घर से चलाते हैं या ऑफिस से चलाते हैं, जो भी है, तो उस केस में आपको ये सब हार्डवेयर के साथ में आपको ये वेंडर्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो रिडंडेंसी जैसे आप देख लेते हैं, ठीक है? तो ये रिडंडेंसी भी आपको मेंटेन करनी है ना? तो यहाँ पे अलोंग विद दैट यू हैव टू मेंटेन द योर इंटरनल नेटवर्क, मीन्स अगर डेटा सेंटर चलाते हैं तो नेटवर्क इक्विपमेंट, स्टोरेज, सर्वर्स, ये सब आपको फिजिकल मैनेज करना है। दीज आर लाइक फिजिकल वन, ठीक है? उसके ऊपर आपका वर्चुअलाइजेशन, अगर आप एनवायरनमेंट चला रहे हैं जैसे वीएमवेयर या हाइपर वी एनवायरनमेंट चला रहे हैं, ठीक है? तो उसको आपको उसके ऊपर मैनेज करना है, राइट? तो ये भी आपको ही इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जो होगा वो भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, मीन्स आप वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन्स बनाएँगे तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो भी आपको मैनेज करना है। फिर अगर उसके ऊपर कोई मिडलवेयर चल रहा है, ठीक है? तो वो भी आपको मैनेज करना है, कोई रन टाइम इंस्टॉल है, वो भी आपको मैनेज करना है। फिर अगर उस पे कुछ डेटा अगर आपने स्टोर कर रखा है, वो आपको मैनेज करना है एंड एप्लीकेशन। तो एंड टू एंड रिस्पांसिबिलिटी इज़ ऑन द हैंड्स ऑफ द क्लाइंट बिकॉज़ बेसिकली दे आर होस्टिंग एवरीथिंग ऑन द देयर प्रेमाइसेस। सो यहाँ पे कोई वेंडर नहीं होगा, यहाँ पे आप ही को आपके इंजीनियर्स लगा के आपको पूरा एंड टू एंड मैनेज करना होगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस के साथ में, ठीक है? तो सबसे जिसमें कि हमें या तो हमें फुल कंट्रोल मिल रहा है बिकॉज़ वी आर मैनेजिंग एंड टू एंड, मीन्स वी हैव फुल कंट्रोल एंड वी हैव फुल रिस्पांसिबिलिटी एज़ वेल। क्योंकि कुछ भी फेल होगा तो इसमें क्लाइंट खुद ही रिस्पांसिबल है। कोई उसको रेस्क्यू करने नहीं आएगा बिकॉज़ दे एवरीथिंग इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय देमसेल्व्स। सो दे शुड हैव देयर इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट एंड पावर सप्लाई एंड रिडंडेंसी एंड एवरीथिंग दे हैव टू इंश्योर इट। अगर हम अब तो अभी ज़्यादातर बिज़नेसेस जो हैं ऑन प्रेमाइस से इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस में मूव कर रहे हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट वांट टू मैनेज दिस ऑल थिंग्स, दे नीड लॉट ऑफ रिसोर्स फॉर दिस। उनको बहुत सारे इंजीनियर लगेंगे, सीसीएनए वाले लगेंगे, सीसीएनपी वाले लगेंगे और सिक्योरिटी कंसल्टेंट लगेंगे, उनको फिर डेवलपर्स लगेंगे, तो ये सब उनसे नहीं हो पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट बचाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस में मूव करते हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या उनको मैनेज करना है, को क्या माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने वाला है। तो एज़्योर के केस में माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, एडब्ल्यूएस या जीसीपी के केस में उनके जो प्रोवाइडर है वो मैनेज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम है, उनका नेटवर्क इक्विपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट इज़ गोइंग टू मैनेज द फिजिकल नेटवर्क बेसिकली। द स्टोरेज, जो फिजिकल स्टोरेज की बात हो रही है, सो फिजिकल स्टोरेज इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज़ दिस इज़ रनिंग ऑन देयर डेटा सेंटर। फिजिकल सर्वर्स की बात हो रही है, तो फिजिकल सर्वर्स भी माइक्रोसॉफ्ट को ही मैनेज करना है। और वर्चुअलाइजेशन, अगर उनका जो भी एनवायरनमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, हाइपर वी या जैसा भी उन्होंने बना रखा है उनका वर्चुअल एनवायरनमेंट, दे आर गोइंग टू मैनेज अप, ठीक है? सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग ऑल दिस हार्डवेयर एंड सर्विसेज अप टू द वर्चुअलाइजेशन, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपको आपको क्या मैनेज करना है, बिकॉज़ यू आर लेट्स से बाइंग अ वर्चुअल मशीन, इफ यू आर बाइंग अ वर्चुअल मशीन, ठीक है? तो आपका इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेज करना है, ठीक है? उसका जो अगर आप में उसमें कुछ भी इंस्टॉल करेंगे मिडलवेयर, ठीक है? तो वो आपको मैनेज करना है, रन टाइम, डेटा, तो वर्चुअल मशीन को के ऊपर से आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। तो फ्रॉम हियर यू मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, you manage everything about it, right? So application data, runtime, middleware, OS, everything is being managed by the customer. तो यहाँ पे कस्टमर मैनेज करेगा अप टू दिस, लेकिन कस्टमर ने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे दी, तो इट इज मच मच बेटर देन दिस, राइट? सो ऑन प्रीमाइस वाले मॉडल से ये ज्यादा बेटर है बिकॉज दे जस्ट नीड समवन हु नोज अबाउट द वर्चुअल मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम and someone who knows about this part only, not the this part, because getting the expert on this area is like expensive. तो इतनी कॉस्ट क्या होगी उनकी, रेंट आउट हो जाएगी बाहर से, मींस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विल इजीली बी प्रोवाइडिंग these services and they will be paying for this in managing rest of the things themselves, ठीक है? तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इतना बर्डन कम हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म एज सर्विस।
So the people who already are on this one, even they are trying to move here. Why? Because they don't want to manage the operating system unnecessarily, middleware, and runtime. So they can save this efforts here, and they can simply be worry about their data and application. क्योंकि लेट्स से अगर कोई डेवलपर है या कोई कंपनी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहती है, तो दे वुड लाइक टू स्पेंड देयर मनी ऑन द पीपल हु आर डूइंग द डेवलपमेंट फॉर देम. तो उस केस में उनको ये रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड नहीं चाहिए उनको, राइट? So they would like to more focus on the data management and application management. In that case, they can go for the platform as service, like app service हो गया है ना. तो सीधा app वो डिप्लॉय करेंगे, वो कोड रन करेगा. Underlying hardware or virtual environment, everything is being managed by the cloud service provider. Okay, so here they just need to manage these two aspect of this in the platform as service. ठीक है. Now third one is the software as service. तो ये मॉडल में क्या होता है कि सब कुछ मैनेज किया जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि शेयर पॉइंट हो गया या सीआरएम हो गया या शेयर पॉइंट हो गया, है ना. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, आप सब्सक्राइब करो, आप सब कुछ यूज कर सकते हो. आपका सब कुछ इज बीइंग मेंटेन बाय द सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. आप ओनली आपका जो यूज है वो आप यूज करेंगे, डेटा भी वही स्टोर करेंगे, एप्लीकेशन भी वही मैनेज करेंगे, और बाकी सारा अंडरलाइंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सो एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. So I hope this diagram is making sense, and if you have any question you can ask right now, so we can just uh, maybe talk. If you have any doubt, anything you, yes, Aniket, yes. सर, ये सर्विसेज हमें लेना मतलब परचेज करना पड़ता है क्या, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? हाँ, ये सर्विसेज़ देखो, जो अगर हम एज़्योर को अगर जनरली हम बात करते हैं, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो उनके पास में बंच ऑफ सर्विसेज़ होती हैं। उसमें से कुछ सर्विसेज़ हमें चूज़ करनी है और हमें बाय करनी है। मीन्स ओके। आपके ट्रायल के लिए तो आपको फ्री में हो जाएगी, $200 में आपका काम हो जाएगा। बट लेट्स से इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड यू वुड लाइक टू डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन, या अगर आपको ऐप सर्विस डालना है, तो वो ऐप सर्विस का कुछ पर मिनट बेसिस पे पेमेंट लगेगा, और वो उस बेस पे वो आपको चार्जेस, देयर इज़ अ कैलकुलेटर एज़ वेल, आई विल शो यू इन फ्यूचर लेक्चर्स। तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो आप उसमें, देख सकते हो कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इज़िली वो सर्विसेज़ बाय कर सकते हैं। ओके। इस ओके। हाँ, थैंक यू। even on the virtual machines, you can buy a virtual machine, but you will have more responsibility to manage the, operating system, middleware and these things. But in यस, case of यस। platform as service, अगर कोई भी सर्विस आप लेते हैं, तो उसमें आपका मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। Anyone else is having any doubt, question? Okay, so let's move forward. I think this is clear to you guys. Anyways, we will have, now we will talk about, yeah, Subham, you have any question? Yes, please. So which is better for our project? Like अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अजूर सब मैनेज कर रहा है, तो हम्म. मोस्ट प्रॉब्ली क्लाउड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्यों यूज करते हैं? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का एक ही एडवांटेज है कि उसमें आपको बेटर कंट्रोल मिलता है। बेटर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वर्चुअल मशीन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, ठीक है? उसका आपको क्या अपडेट्स चलाना है, कब अपडेट चलाने हैं उसके, या आपको उसमें क्या इंस्टॉल करना है। हो सकता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस लेते हैं, तो हो सकता है एक ही वर्चुअल मशीन पे आप 3-4 वेबसाइट चला लें, ठीक है ना? अगर प्लेटफ़ॉर्म एज़ सर्विस लेंगे तो एक एप्लीकेशन लेंगे, या एक आप ऐप सर्विस लेंगे, तो उसपे एक ही एप्लीकेशन रन कर सकते हैं आप, राइट? लेकिन अगर आपको जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जैसे आईएएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में, तो आप हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज़ आपको आप उसमें रन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पूरा वर्चुअल मशीन, जैसे आपको वर्चुअल कंप्यूटर की तरह पूरा कंप्यूटर मिल रहा है, जिस पे आप 4-5 अलग-अलग सर्विसेज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते, तो मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही डिसएडवांटेज है कि आपको उसको मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि एक ही वर्चुअल मशीन ले लो, उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, अच्छा जैसे कि 15 जीबी रैम या ऐसा कुछ ले लो, और उसी की कंप्यूट पावर से 3-4 अलग अलग सर्विसेज रन कर लो। तो एक वो अप्रोच हो सकती है। दूसरी ये अप्रोच हो सकती है कुछ कंपनीज की कि चलो एक माइक्रो सर्विस ले लेते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन ले ली, और उसमें एक ही एप्लीकेशन रन करना है, तो हम क्यों मैनेज करें इतना सारा, तो इट डिपेंड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसी। शुभम, डज इट Okay. आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है, Yes. ऑलराइट। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? या अंशुल, या अनम्यूट प्लीज। सर ये तो मॉडल्स है ना, इसके अंदर सर्विसेज रहेंगी। Right. These are just models because there are several service like platform services. There are several other services which are यस considered सर, जैसे infrastructure सर service. AWS में लैम्बडा वगैरह और काफी सारी सर्विसेज रहती हैं, हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये तो सर Exactly, सिर्फ मॉडल्स है। exactly. But वो conceptually clear होना चाहिए कि कौन सी सर्विस कहाँ पे फॉलो हो रही है, right? This is what we are, कुछ fundamental. सर्विसेज Exactly, IaaS में आएंगी और कुछ PaaS में आएंगी सर को। exactly. ठीक है। ओके सर। So this is what we are talking, that what categories of service we do have, कौन सी प्लेटफॉर्म एज सर्विस बोली जाएगी, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बोली जाएगी, और कौन सी सॉफ्टवेयर एज सर्विस बोली जाएगी। सो दीज आर टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड जनरली इन द इंडस्ट्री। ठीक है, all right, I hope I answered all the questions, and now we'll talk about cloud types. Cloud के कितने types होते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लाउड इज पब्लिक क्लाउड, second is the private cloud, and the third one is the hybrid cloud. The differentiation is, the public cloud कब बोलते हैं, जबकि वो बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, जैसे एज्योर हो गया। तो एज्योर को हम पब्लिक क्लाउड क्यों बोलते हैं कि वो दैट इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक रेंट मॉडल होता है। ठीक है, तो उस केस में उसको हम पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल। इन दिस केस यू हैव नो लोकल हार्डवेयर टू मैनेज और कीप अप टू डेट। तो इसमें सब कुछ पब्लिक क्लाउड इज बीइंग मैनेज्ड बाय लाइक लार्ज वेंडर्स। तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, और आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है। एंड लाइक दिस इज लाइक मोस्ट कॉमन, वेयर लाइक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, they manage everything for you. So these are called public cloud because there are multiple tenants using this cloud. So if you have Azure, for example, so it is not being used by you, it is being used by multiple people or companies or the resources. तो इसलिए इसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। सेकेंड हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड, मीन्स आपका खुद का आपने क्लाउड एनवायरनमेंट किया हुआ है। तो यू क्रिएट अ क्लाउड एनवायरनमेंट इन योर ओन डेटा सेंटर। ठीक है, वो आपका प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप पूरा डेटा सेंटर बनाएंगे, उसको अच्छे आईएसपी के साथ में कनेक्ट करेंगे, उसके डीआर साइड भी बनाएंगे, तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया। उसमें आपके जो स्टाफ मेंबर है, जो आपकी कंपनी में जो स्टाफ मेंबर है, उनके लिए आप बनाएंगे, तो वो आपके स्टाफ मेंबर ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज योर प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक रेंटेड टू अदर्स बेसिकली। जैसे कि आप कुछ कंपनीज के केस में देख सकते हैं कि उनका खुद का अपना एक क्लाउड एनवायरनमेंट उनके ऑन प्रीमाइसेस में होता है। थर्ड वन इज द हाइब्रिड क्लाउड। ये काफी कॉमन हो गया है। तो पहले जो होता था, मीन्स ड्यूरिंग द 90s एंड इवन 2000, बहुत सारे प्राइवेट क्लाउड होते थे, मीन्स कि उनका खुद की क्लाउड सर्विसेज उनके ऑन प्रीमाइसेस से रन करती थी। तो उस केस में उनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता था, राइट? बिकॉज they were using this private cloud, and they were having huge cost to manage these infrastructure and failovers and all those things, high availability, etc. So they slowly moved to the hybrid cloud. हाइब्रिड में क्या होता है कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है ये, कि ये क्लाउड दोनों पे हो जाए। जैसे कि अगर ये आपका कंपनी बिल्डिंग है जैसे, ठीक है, दिस इज लाइक कंपनी बिल्डिंग, और ये कंपनी में आपका डेटा सेंटर है। ठीक है,
अब आप डेटा सेंटर की कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप एकदम से पब्लिक क्लाउड पे स्विच नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना है, इसको हाइब्रिड करना है। तो बहुत सारे हाइब्रिड पे कर रहे हैं, तो जैसे आपने पार्शियली आपका क्लाउड एज्योर पे ले लिया, ठीक है? तो आपका जो कंपनी में जो सर्वर्स चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आपके वीएम्स चल रहे थे, हाइपर वी या वीएमवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस पे आपके वीएम्स चल रहे थे, तो कुछ वीएम्स आपने यहाँ मूव कर लिए। तो आपकी अवेलेबिलिटी दोनों जगह हो गई। आपके यूज़र जो है इस पे ऑथेंटिकेट करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये रिसोर्सेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी कंपनी में जो डेस्कटॉप्स लगे हुए हैं, वो भी आपका इंटरनल रिसोर्सेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये वाले रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड, जहाँ पे आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ में आपकी एज़्योर पे भी अवेलेबिलिटी है। This transition why they made, because they don't want to upgrade this, ठीक है? स्लोली ये डाई आउट होता है। बेसिकली होता क्या है कि आपको सर्वर पे हर 5 से 10 साल में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आपको बढ़ाते रहना पड़ता है। आपको हार्ड डिस्क भी, जैसे पहले एचडीडी आता था, उसका स्पिनिंग स्पीड कम था, तो फिर बाद में उसको अपग्रेड करो, फिर अभी एसएसडीज आ गए हैं, तो उनमें अपग्रेड करो, उनमें वापस नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो उनको अपग्रेड करो, तो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसको हाइब्रिड मॉडल पे ले गए कि चलो यहाँ पे जो चल रहा है वो यहीं चलने दो, जो आउटडेटेड है, और नया जो भी बनेगा वो उस पे बनाएंगे। तो दे आर स्लोली मूविंग टू the public cloud, but this is called hybrid cloud because these are like connected and having both the cloud system, private as well as public, on their premises. And slowly what they will do is they will turn it off because everything is moved to Azure, and then it becomes the public cloud, ठीक है? तो ये एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इन तीनों के बीच में, या इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। So these are like fundamental concept just for your understanding. Okay. Any question here? All right. So let's move forward. Okay. Now here a little bit about what is the cloud computing. तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या डिफाइन करता है ये। और cloud computing is basically great level of abstraction over the infrastructure that can help you to focus on more on your business, ठीक है, and having to worry about, ठीक है। सो बेसिकली ये यही बताना चाहता है यहाँ पे कि आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, वो आपका जो सर्वर या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड होस्टेड हो, क्लाउड पे रन कर रहा हो, तो आपकी ऑन प्रेमाइस की जो हेडेक है वो कम हो जाए बेसिकली, ठीक है। सो like cloud services, Azure Web Apps, these are some of the example of this cloud infrastructure requirements, or we can have more in detail. Okay. So I don't think we have to look into it. This is like generic information which is talking about like what are the advantage to move to the cloud basically, ठीक है। तो आपको ऑफिस नहीं चाहिए, उसके लिए पावर और कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए, आपको डेटा सेंटर रन नहीं करना, आपको नेटवर्क बैंडविड्थ नहीं चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस नहीं चाहिए। तो ये सारे एडवांटेज हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे हमें क्यों मूव करना चाहिए, या क्यों कंपनीज मूव टुवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो आपको सारा कुछ, ये हार्डवेयर, डेटाबेस सर्वर, सोर्स कंट्रोल, डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस, ये सब कुछ आपको ऑन प्रेमाइसेस में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको वहीं पे मिल जाता है। What are the benefit and advantage of cloud computing? So it is cost effective, first of all, because you are just paying for what you use. But if you buy, let's say if you are buying a server and keeping it in your office, then you already spend the money, either you are using or not using it. बट क्लाउड में ये बेनिफिट है कि पे एज यू गो, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, तो उसमें आपको उतना ही पे करना है जितना आपने यूज किया है, दैट्स इट। सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये स्केलेबल है, इसको आप जितना चाहिए आप रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं इसमें, तो ये स्केलेबिलिटी का आपका एडवांटेज मिल जाता है। अगर ऑन प्रेमाइसेस में है, अगर आप एक सर्वर ऑर्डर देंगे तो हो सकता है 2 हफ्ते में आए, यहाँ पे आप एक क्लिक में एक सर्वर ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है कि ये इलास्टिक है, आपको जब चाहिए तब ऐड करो, जब चाहिए तब रिमूव करो रिसोर्सेज ऑन डिमांड, तो ये एक फायदा है हमें। one more advantage is like current, so hardware or cloud services provider, they maintain the latest
अपडेट्स और हार्डवेयर्स और रिसोर्सेज। तो ये करंट रहता है हमेशा, आपको अप टू डेट रखने के लिए इसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, ठीक है। वन मोर एडवांटेज इज द रिलायबल, बिकॉज बैकअप के पर्सपेक्टिव में, डीआर के पर्सपेक्टिव में आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिलायबल होता है, ठीक है। आप रेप्लिकेशन सर्विसेज भी ले सकते हैं, जो कि आपके इंश्योर करती है कि आपका अगर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे अगर कोई डेटा सेंटर फेल भी हो जाता है, तो उनका दूसरा डेटा सेंटर आपकी सर्विसेज को अप एंड रनिंग रखेगा, ठीक है। वन मोर एडवांटेज इज इस ग्लोबल, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप डेटा सेंटर देखेंगे, दीज आर अराउंड द ग्लोब्स, तो आपको हर जगह आपको उनके डेटा सेंटर मिल जाएंगे। तो आपको जहाँ रिसोर्स चाहिए, जहाँ पे आपकी आपको पहुंच चाहिए, वहाँ पे आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर इंडिया में कंपनी है और आप यूएस में आपके क्लाइंट है, तो आप अगर वेबसाइट यूएस में होस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया में आप एज्योर का सब्सक्रिप्शन लेके रिसोर्सेज यूएस में क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, रिडंडेंसी, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फायदा है इसमें, है ना। देन द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लाउड दे हैव सेट अप पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल, तो उनका प्रूवन प्लेटफॉर्म है। तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें ये सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ भी नहीं लेना होता है। दे आर ऑलरेडी कंप्लायंट टू मेनी कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी फायदा मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज, just for your understanding and just for you can, so it, let's say if in interview or somewhere they ask you about the why we should use the cloud, why we should use Azure और ऐसा कुछ अगर आता है, तो आप एटलीस्ट उसको easily you can answer it, ठीक है। now we'll understand about the core services। तो हमारे Azure में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, और अगर आप Azure फंडामेंटल का एग्जाम अगर टारगेट करते हैं, तो 30 to 35% उसमें ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको कोर्स को उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस उसके रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ये सारी कोर सर्विसेज होने वाली हैं, तो हम इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कोर एज्योर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप्स क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, तो इनके बेनिफिट्स एंड यूजेस देखेंगे। देन विल डिस्क्राइब अबाउट सम कोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन एज्योर। कौन कौन से कोर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूट में कौन कौन से हैं, तो ये सब कंप्यूट सर्विसेज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, इनमें डिफरेंशिएट करेंगे, इनके बारे में समझेंगे हम थ्योरेटिकली, ठीक है। टेक्निकली विल टॉक फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, बट थ्योरेटिकली विल टॉक अबाउट दिस। एंड देन विल डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन नेटवर्क कैटेगरी। तो नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोडक्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूट एक लाइक कैटेगरी ऑफ सर्विस आप मान लीजिए, कंप्यूट वाली सब ये सर्विसेज हैं, ठीक है। नेटवर्किंग में आपको ये सारी सर्विसेज हैं, इनके बारे में हम समझेंगे कौन सी सर्विस क्या करती है ना। गेटवे हो गया, कंटेंट डिलीवरी हो गया। फिर एक कैटेगरी ये हो गई कि आपकी स्टोरेज टाइप ऑफ सर्विसेज है, तो स्टोरेज में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही है, कौन सी कब लेनी है, या उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो सब हम देख सकते हैं, है ना। तो काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। फिर डेटाबेस सर्विसेज में हमें कौन सी डेटाबेस सर्विसेज क्या हमें सर्व करती है या कहाँ पे काम आती है, वो सब देखना है, ठीक है। देन वील डिस्क्राइब अबाउट द मार्केट प्लेस। एजियो मार्केट प्लेस में क्या क्या अवेलेबल है, क्या सिनेरियो, यूजर सिनेरियो, कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। देन विल डिस्क्राइब अबाउट सम ऑफ द सॉल्यूशंस अवेलेबल ऑन एजियो लाइक IoTs, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या है, डेटा लेक एनालिटिक्स में क्या है, AI में क्या अवेलेबल है ना। सर्वर लेस कंप्यूटिंग में क्या क्या अवेलेबल है, तो उनके बारे में हम समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। एंड देन लाइक कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या टूल है, या एज्योर के मैनेजमेंट टूल कौन कौन से अवेलेबल है, उनके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। anyone is having any question? All right, looks good. So then see you on tomorrow. We'll keep the same time for tomorrow,
but later on we'll decide what time is good for all of us. So let's keep the same time for tomorrow, I think, and then maybe later on we'll decide on it, but this week maybe we can continue with the same time. All right, thank you everyone. And admin. Yes, I am here. Thank you so much Yeah. for the session. All right, thank you everyone. Thank you. So I will hand it over to you. All right, bye bye, thank you.